Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Taimur Smad and I am going to talk to you about e-commerce. What is e-commerce? E-commerce is commercial transaction conducted electronically on the internet. E-commerce, also known as electronic commerce or internet commerce, refers to the buying and selling of goods or services using the internet. So जो ई कॉमर्स है वो आपकी जो भी बाइंग और सेलिंग है वो थ्रू इंटरनेट के ज़रिए जो भी काम आप बाय या सेल कर रहे हैं वो ई कॉमर्स में आता है। ई कॉमर्स जो है इलेक्ट्रॉनिकली जितने भी आपकी ट्रांजैक्शंस हैं कमर्शली वो सारी इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के थ्रू जो होती हैं वो ई कॉमर्स कहलाती हैं। सो टुडे टॉपिक इज related to online communication and offline communication techniques for e-commerce. So first of all, online communication. Online communication refers to the ways in which individuals as well as computer can communicate with each other over a computer network such as the internet. These ways include chat room, email, and it allows the company to understand the behavior of the consumer as well as personalize your communication. So when engaging in social networks, the priority is not to sell your product but rather to connect with your community. Offline communication refers to any and all marketing actions that do not involve the internet. ऑफलाइन कम्युनिकेशन वो है जिसमें इंटरनेट शामिल नहीं हो रहा, सच एज सम रेफर्स टू इट एज ट्रेडिशनल मार्केट। जैसे ट्रेडिशनल मार्केट में आप क्या करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, डायरेक्ट मेल करके करते हैं, या आप किसी को थ्रू फ्लायर्स के थ्रू आप जो है वो कम्युनिकेट करते हैं अपनी प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को। तो इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं जो डायरेक्ट मेल, डायरेक्ट सेलिंग। सो डायरेक्ट मेल क्या है? डायरेक्ट मेल मार्केटिंग क्रिएट्स अवेयरनेस ऑफ अ प्रोडक्ट थ्रू पोस्ट कार्ड्स, लेटर्स एंड फाइल लेटर एंड सेंड थ्रू मेल। उसके बाद आ जाता है प्रिंट मार्केटिंग इंक्लूड्स एडवर्टाइजिंग product and service through newspapers and magazines. So ऑनलाइन मार्केट क्या क्या इंक्लूड कर रही है? ऑनलाइन मार्केट में जो इंक्लूड हो रहा है वो थ्रू वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, वीडियो ब्लॉगिंग एंड ऑनलाइन क्लासिफाइड्स। ये जितनी भी पॉइंट्स हैं ये जो है ऑनलाइन मार्केटिंग मीडिया इंक्लूड कर रहे हैं। सेकेंड वन इज ऑफलाइन मार्केटिंग मीडिया। ऑफलाइन मार्केटिंग मीडिया इंक्लूड टेलीविजन, रेडियो, ब्रोशर, फ्लायर्स, बैनर्स एंड न्यूज़पेपर्स, पम्फलेट्स एंड posters. Online communication techniques for e-commerce. Search marketing. First of all, I will explain the search marketing. Is a tactic used to gain online presence and traffic via paid and unpaid strategies on search engines such as Google, Bing, and Yahoo. Search marketing is divided into three main categories: search engine optimization, pay per click, and trusted feed. So search engine optimization, the process of maximizing the number of visitors to a particular website by ensuring that the site appears high on the list of results returned by a search engine. Pay per click जो है वो आपको pay per click, PPC stands for pay per click, a model of internet marketing in which advertisers pay a fee
fee each time one of their ads is clicking. पे पर क्लिक में ये है कि आप जितना भी मिसाल के तौर पे क्लिक कर रहे हैं इंटरनेट में, वो एड वाले एड्स के उनको पेमेंट दी जाती है. एसेंशियली इट्स अ वे ऑफ बाइंग visitors to your site rather than attempting to earn those visitors or organically. Search engine advertising is one of the most popular forms of PPC. जो मैंने फर्स्ट कहा, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है जो नंबर ऑफ विजिटर्स आपके जो कस्टमर इसके साथ अटैच हो रहे हैं वो मैक्सिमाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे. आपका जितने भी कीवर्ड्स हो गए इसमें शामिल हो जाते हैं. इसके अंदर आप काफ़ी जो ऐसे वर्ड जो होते हैं जो यूज़ हो रहे होते हैं डेली बेसिस पे और वो ट्रेंडिंग पे होते हैं और वो वर्ड यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज कर लेते हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू. Trusted feed. A trusted feed is a paid inclusion program that utilizes an XML feed to index pages on your website. The results are taken displayed under the natural listing section of some of the world's leading search engines like Shopping Engine. Trusted feeds are based on XML feed and very much operated the same way. ऑनलाइन PR, सेकेंड वन है जी ऑनलाइन PR. ऑनलाइन PR क्या चीज़ है? ऑनलाइन PR है डिजिटल PR इज एन ऑनलाइन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी used by business to increase their online presence. Digital PR agencies network with journalists, bloggers, influencers and send online press release to gain high quality backlinks. ऑनलाइन PR में इंक्लूड होती हैं कि आप मीडिया अल्टरनेटिव सर्विसेज. ऑनलाइन मीडिया अल्टरनेटिव सर्विसेज में आपके पास है आप जो एडवाइजरी है. मीडिया एडवाइजरी इज अ डॉक्यूमेंट विच राइट टू अलर्ट द मीडिया, कि ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपका मीडिया को अलर्ट करता है. फिर पोर्टल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है. पोर्टल रिप्रेजेंटेशन are online platform that allows businesses to conduct interaction and transaction with customer and suppliers, instantly facilitating a more institutive and connected operations. An integrated portal solution allows organization in the agriculture supply chain to have one interface shared across their business community. Third one is online partnership. Online partnership, a partnership is a formal arrangement by two or more parties manage and operate a business and share its profits. जो ऑनलाइन पार्टनरशिप है इसमें ये आ जाता है कि आपकी फॉर्मल अरेंजमेंट्स होती हैं, उसमें टू और मोर पार्टीज इंक्लूडेड होती हैं जो मैनेज कर रही होती हैं और ऑपरेट कर रही होती हैं. आप बिजनेस को और उनके प्रॉफिट्स को आपस में शेयर कर रहे होते हैं. उसके बाद जाता है ऑनलाइन पार्टनरशिप जो है वो एक सिमिलर है, किसके थ्रू इसके टर्म्स और कंडीशंस जो हैं वो डिफरेंट ड्यू टू इट्स नेचर, कि इसकी जो नेचर की वजह से ये डिफरेंट होते हैं. द सेकंड वन इज लिंक बिल्डिंग. लिंक बिल्डिंग इज द एक्टिविटी ऑफ लिंकिंग अ कंपनी वेब पेज ऑन अनदर वेबसाइट कंटेंट. यू कैन लिंक इनटू ब्लॉग्स, प्रोडक्ट पेज ब्लॉग एंड or any other content that is trustworthy of readers. So affiliate marketing is the process of earning a commission by promoting other people's sponsorship इसमें शामिल हो जाता है. Sponsorship is your business funding an event or organization or mutual benefits. Affiliate marketing ये है कि आप earning a commission, आपको जब प्रमोट करते हैं, आप किसी की प्रोडक्ट को, किसी कंपनी की प्रोडक्ट को जब आप प्रमोट करते हैं तो आपको उसमें से कमीशन मिलता है, उसको एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं. जैसे कोई मिसाल के तौर पे मेरा बिजनेस है
तो मैं उसको ऑनलाइन एफिलिएट मार्केट कर लूँ और मैं लोगों को कहूँ कि मेरी कंपनी का जो है वो आप प्रोडक्ट को जितना आगे भेजेंगे आपको उसमें कमीशन दिया जाएगा, उसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। यू फाइंड अ प्रोडक्ट यू लाइक यू प्रमोट ये सारी चीज़ें, फिर आप वो इसके साथ प्रॉफिट में शेयरिंग का शामिल कर लिया जाता है। स्पॉन्सरशिप में भी यही है कि स्पॉन्सरशिप में ये है कि आप बिजनेस में फंडिंग जो होती है, इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, म्यूचुअल बेनिफिट्स जो होते हैं वो आप स्पॉन्सरशिप के साथ बिजनेस में स्पॉन्सरशिप को देते हैं। स्पॉन्सरशिप मार्केटिंग इज यूजुअली योर स्पॉन्सरशिप इन अ प्लान्ड कैंपेन टू मार्केट योर बिजनेस, कि आपने उसको पूरे तरीके से प्लान किया होता है कि इसको मैंने बिजनेस को मार्केट किस तरीके से करना है, स्पेशली जो आपके स्पेशली लोकल एरिया के थ्रू। उसके बाद जब आप चिल्ड्रन को फंडिंग कर रहे होते हैं या स्पोर्ट्स को टीम्स को आप या लीग्स को आप कर रहे होते हैं, एक्चुअली आप उसको अपनी बिजनेस को सपोर्ट दे रहे होते हैं, स्पॉन्सरशिप कर रहे होते हैं अपनी। वो स्पॉन्सरशिप इस वजह से करते हैं कि ताकि आपकी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग जो है वो आप मतलब वो आपकी इंक्रीज हो जाए। फिर को ब्रांडिंग आ जाता है। को ब्रांडिंग में ये है कि को ब्रांडिंग में इज मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट यूटिलाइज मल्टीपल ब्रांड नेम ऑन अ गुड और सर्विसेज एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी अलायंस, आल्सो नोन एज ब्रांड पार्टनरशिप। जो इसके साथ मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट यूटिलाइज मल्टीपल ब्रांड, और इसके साथ आपके नेम ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। ना इसमें जो इसको दूसरा नाम जो है ब्रांड पार्टनरशिप भी कहलाता है। इसकी वजह यह है कि आप जितने ब्रांड हैं उनको को ब्रांडिंग कर रहे होते हैं आप, जिस तरह नाइकी एंड एप्पल, मास्टर कार्ड एंड एप्पल पे, ये चीज़ें जो इसमें को ब्रांडिंग में आ गई। फोर्थ वन इज इंटरेक्टिव एड्स, कि इंटरेक्टिव एड्स आपने किस तरह बनाना। इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग इज एनीथिंग दैट एनकरेजेस द टारगेट ऑडियंस टू इंटरेक्ट विद एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे आपका कस्टमर या आपकी ऑडियंस जो है वो उसमें इंटरेक्ट हो जाए, फिर उसकी मार्केटिंग और प्रमोशन में वो आपका एक किस्म का साथ दें, या मार्केटिंग या प्रमोशन या एडवर्टाइजिंग के लिए आपने ऐसा वो प्लेटफॉर्म या ऐसी बनानी है जो ऑडियंस उसमें इंटरेक्शन हो जाए। ऐसे इसको कहते हैं इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग। इट टर्न्स ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग इनटू एक्टिविटी दैट एनकरेजेस द ऑडियंस टू डू समथिंग, कि आपको ऑडियंस को इस तरह इनकरेज करे कि वो कोई ना कोई आपके लिए ज़रूर उसकी या वो खुद शेयर कर दे, जिस तरह सोशली होता है। इंटरेक्टिव एडवर्टाइजिंग जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन इंटरेक्टिव मीडिया के थ्रू भी कम्युनिकेशन इसमें की जाती है। डिस्प्ले एड एंड बैनर्स, कि आपने एड और बैनर्स कैसे डिस्प्ले करने हैं ऑनलाइन। ठीक है, ये ऑनलाइन में क्या डिस्प्ले एड आल्सो नोन एज ब्रांड बैनर एड इज अ फॉर्म ऑफ ऑनलाइन पेड एडवर्टाइजिंग, कि ये आपने ऑनलाइन पेड एडवर्टाइजिंग है, आपने पे करके फिर एडवर्टाइज किया। दैट इज टिपिकली अ डिजाइन इमेज और अ फोटो एंड अ कॉपी। Ads can be used to advertise exactly that user placed in his or her cart to get them to complete the purchase that they left it before. So next, fifth one is opt-in email. opt-in email जो है वो परमिशन मार्केटिंग भी कहलाता है। परमिशन मार्केटिंग क्या चीज़ है कि आप वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल एट योर डिस्पोजल, इफ यू यूज इट करेक्टली यू कैन इंक्रीज योर रेवेन्यू, कि अगर आप इसको यूज़ कर लेंगे सही तरीके के साथ तो ये आपको रेवेन्यू को जनरेट करता है, इंक्रीज करता है सिग्निफिकेंटली थ्रू द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। सिर्फ ये कम्युनिकेशन की पावर के थ्रू आपने करते हैं। इसमें कोल्ड रेंटेड लिस्ट शामिल है, हाउस लिस्ट ईमेल। कोल्ड मार्केटिंग इज व्हेन अ कंपनी रेंट्स एन ईमेल लिस्ट फ्रॉम अ कंज्यूमर ईमेल
house list email. The house list is a permission based list compiled from opt-in subscribers. Sixth one has the viral marketing. Viral marketing is a method of marketing whereby consumers are encouraged to share information about a company, the good or service via the internet. How to create viral marketing strategy? कि आप वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट कर सकते हैं. एक तो प्लान फॉर सक्सेस के थ्रू चूज योर कंसेप्ट एंड मीडिया, प्री लॉन्च योर कैंपेन, save time and money by using existing resources to lay groundwork. Incentivized में आ जाता है कि incentivized viral is the first type of marketing strategy. जो इसकी जो वायरल स्ट्रेटजी है, वायरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी की पहली टाइप incentivized है. That is used by most business in which they offer rewards or incentives to refer somebody to or recruit to the company. This process become more effective when they referred person who intentionally want to get the reward. Then media mentions. Media mentions is a social media tool that monitors the web, including the major social media channels, to keep you informed every time somebody mention your name, brand, or target to keyword, and its user friendly interface makes it very easy to use. Now offline communication. Now offline communication refers to any and all marketing action that do not involve the internet. कि ऐसे एक्शंस जो इंटरनेट जिसमें शामिल नहीं होता एज मच एज सच सम रेफर टू इट एज ट्रेडिशनल मार्केटिंग. एग्जांपल इसकी जो है ट्रेडिशनल मार्केटिंग की एक डायरेक्ट मेल है, उसके बाद प्रिंट आ जाता है, फिर एडवर्टाइजिंग जो है इसकी टेक्निक्स में ऑफलाइन कम्युनिकेशन की टेक्निक्स में आए तो आ जाती है एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन, पीआर और डायरेक्ट मेल, exhibition and word of mouth. So first of all ऑफलाइन कम्युनिकेशन टेक्निक में एडवर्टाइजिंग है. एडवर्टाइजिंग जो है वो आप किस तरह ऑफलाइन कर रहे हैं. इसमें ऑनलाइन में ये था कि आप इंटरनेट के थ्रू जितनी भी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं वो इसमें ऑफलाइन के थ्रू ये है कि आप कम्युनिकेशन जो है एम्प्लॉयज़ स्पॉन्सर कर रहे होते हैं या नॉन पर्सनल मैसेजेस टू प्रमोट कर रहे होते हैं और सेल प्रोडक्ट सर्विस और आइडिया. ठीक है, फिर आप पर्सनल सेलिंग में आ जाते हैं. पर्सनल सेलिंग में फेस टू फेस सेलिंग आती है कि जिस तरह इंश्योरेंस कंपनीज कर रही होती हैं पर्सनल सेलिंग है. दूसरे नंबर पे एक कंपनी पाकिस्तान में टाइम्स आई, वो पर्सनल सेलिंग कर रही थी. एक आजकल ओरिफ्लेम चल रही है जो पर्सनल सेलिंग, मतलब कि अपना कस्टमर को पर्सनली मीट करके उसको अपनी प्रोडक्ट के बारे में अंडरस्टैंड करा के फिर उसको पर्सनल सेलिंग में होने की. सेल प्रमोशन में ये है कि आप अक्सर ये सेल प्रमोशन की जिस तरह टूथपेस्ट की जब लॉन्चिंग हुई, सॉरी कंपनी है अपनी टूथपेस्ट की तो वो उन्होंने जब लॉन्च की तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अपनी प्रोडक्ट कस्टमर्स तक दी ताकि ये कस्टमर्स यूज़ करें तो फिर इस पे गेन करें. सेल प्रमोशन टूवर्ड्स बायर, मतलब कि वो अपनी प्रमोशन को बिल्कुल फ्रीली भी बेचते हैं या सेल्स करके प्रमोट करते हैं. फिर पीआर आ जाता है कि ऑफलाइन पीआर कंसिस्ट ऑफ एनी वे कम्युनिकेशन विदाउट मच फीडबैक. ऑफलाइन वन वे कम्युनिकेशन विदाउट. डायरेक्ट मेल. Direct mail is a form of marketing that involves sending a physical piece of promotion material through a postal service or other courier service to a home or business. Some
refer to it is junk mail because direct mail generally arrives uninvited. Uh, Exhibition, the three important stages of exhibition: प्री एग्जीबिशन, लाइव एग्जीबिशन और पोस्ट एग्जीबिशन होते हैं. इसमें प्री एग्जीबिशन मार्केटिंग में मार्केटिंग एफर्ट्स अहेड ऑफ द एग्जीबिशन टू जनरेट इंटरेस्ट एंड एनकरेज विजिटर्स. लाइव एग्जीबिशन में क्या होता है कि मार्केटिंग एफर्ट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द एग्जीबिशन टू अट्रैक्ट guests to your exhibit. पोस्ट एग्जीबिशन में यह है कि आप मार्केटिंग एफर्ट्स जो होती हैं वो सारी पहले ही हैपन कर ली होती हैं. पहले से आपने जो भी एग्जीबिट करना है वो आप पहले से उसको अरेंज कर लें. लास्ट वन इज वर्ड ऑफ माउथ. कि वर्ड ऑफ माउथ से आप किस तरह ऑफलाइन करते हैं. जिस तरह आपकी कस्टमर्स एक्सपीरियंस लेके प्रोडक्ट से या सर्विस यूज़ करके एक्सपीरियंस लेता है, वो अपने दोस्त को या किसी दूसरे कस्टमर को बताता है कि फ़लान जो मैंने प्रोडक्ट यूज़ की थी या सर्विस यूज़ की थी वो सर्विस जो है बहुत अच्छी थी. जैसे रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू भी हो सकता है, और उसके बाद आप जितनी भी मिसाल के तौर पे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू मतलब वो अपने कस्टमर जो है दूसरे को बताता है. थैंक यू सो मच. आई